میں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کا صوبائی صدر احمد جان آل پارٹیز کی جانب سے تمام ساتھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہماری کانفرنس میں شریک ہوئے، اور ہماری وہ امید ہے کہ جو مسئلہ ہے جس پہ آل پارٹیز نے آج اجلاس کیا تھا، جو لائحہ ہم نے طے کیا ہے تحریک کا، اس حوالے سے آپ اپنا قلم بھی ہمارے ساتھ شامل کریں گے۔ سیاست اور صحافت کے ذریعے مل کے ہم ان مسائل کا حل نکالیں گے، عوام کو اس عذاب سے نجات دلائیں گے۔ ایسا ہے کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ پورا پختونخوا وطن، پھر یہاں پہ بلوچستان ایک عرصے سے دہشت گردی کا، بدامنی کا، بدخوری کا شکار رہا ہے، جس میں ہزاروں لوگ سیاسی کارکن اس میں شہید ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے۔ ایک بڑا عذاب مسئلہ ہے اس ملک میں، اور ملک میں بالخصوص ہمارا بلوچستان اور پختونخوا وطن اس کا شکار رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ ضلع ارنائی اور زیارت ایک عرصے سے یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات، بدخوری کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، کہ جس میں ہمارے کول مائنز ہے، ہمارے تاجر ہے، ہمارے ٹرانسپورٹر ہے، یہ اس کے شکار ہوئے ہیں، کئی اس میں واقعات ہوئے ہیں۔ اس کا پس منظر میں آپ کو مختصر بیان کروں کہ 2014-15 میں یہاں بلوچستان میں اور یہاں ارنائی ڈسٹرکٹ میں پشتون اضلاع میں جنوبی پختونخوا میں جب ایف سی ڈپلائی ہوئی، کوئلے پہ ان کا ایک قسم کا قبضہ آپ سمجھتے ہیں یا اس کا کنٹرول سمجھتے ہیں، وہ ہوا، تو 2015 میں صوبائی کیبنٹ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سیکورٹی فورسز اور ایف سی کا کوئلے کے کاروبار سے یا ان کی سیکورٹی کے حوالے سے ان کا تعلق نہیں رہے گا۔ پھر کیبنٹ کا یہ منٹس جاری ہوئے، اس کا آرڈر جاری ہوا، پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب مالک بلوچ جو سی ایم تھے، انہوں نے ایک آرڈر جاری کر دیا دوسرا، لیکن اس پہ بدقسمتی سے عمل نہ ہو سکا۔ 1 ہفتے 10 دن کے لیے تو عمل ہوا، لیکن اس کے بعد نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 2021 تک۔ 2021 میں جو کور کمانڈر صاحب تھے، انہوں نے یہ پیسے بند کر دیے کہ ایف سی کوئلے پہ پیسے نہیں لے گی۔ اس وقت وہ 270 روپے پر ٹن ہم سے لے رہے تھے کول مائنز والوں سے، جن کا کوئی نہ رسید تھا نہ کچھ تھا۔ 2021 میں یہ بند ہوا، اور اس دوران اربوں روپے جو ہے وہ لیے گئے سیکورٹی کے مد میں، لیکن سیکورٹی ضلع ارنائی سمیت مارواڑ تمام علاقوں میں کول مائنز کو سیکورٹی نہیں ملی، نہ عوام کو ملی۔ اس دوران صرف ضلع ارنائی میں 2014-15 سے لے کے 2022 تک، ابھی 23 تک 55 سیاسی کارکن ہے، کول مائنز ٹھیکیدار ہے، مزدور ہے، ڈرائیور ہے، وہ اس دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، کئی واقعات ہوئے ہیں ضلع میں۔ یہ صرف میں ضلع ارنائی کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، کروڑوں روپے کی بتیں جو ہے وہ لیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس دوران کئی اس پہ مرحلوں پہ ہم نے احتجاج کیا، مظاہرے کیے، دھرنے کیے، احتجاجی تحریکیں چلی پارٹیوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے۔ گزشتہ سال بھی ایک مشہور ہماری تحریک تھی جو ارنائی کا، جو خوست کے مقام پہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ تمام سلسلہ چلتا رہا، لیکن اب تک نہ امن ہوا ہے، نہ یہ بدخوری کا خاتمہ ہوا ہے، نہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے۔ تو جون 2023 کے پہلے ہفتے میں کوئٹہ ارنائی شاہراہ پہ سر شام 35 ٹرکوں کو جو ہے وہ گولیاں اس پہ چلائی گئی، اس کے ٹائر بسٹ کیے گئے۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ کول مائنز کے پی ٹی ٹھیکیداران تھے، جن کا سنجاوی سے تعلق تھا، وہ کوئلہ خریدنے کے لیے آئے تھے زردالو کے مقام پہ، وہ دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ سنجاوی کے 2 ٹھیکیدار تھے، وہ شہید ہوئے۔ پھر 26 جون 2023 کو عید سے 2-3 دن قبل یہ کوئٹہ ارنائی شاہراہ پر مانگی کے مقام پر ہمارے 11 ٹرکوں کو جلایا گیا، مکمل تباہ کیا گیا، جو کوئلے سے بھی لوڈ تھے، مطلب اس میں اینٹیں بھی تھی، فروٹ بھی تھا۔ یہ واقعہ شام 5 بجے شروع ہوا اور رات 1 بجے تک جاری رہا اس مین شاہراہ پہ۔ تو یہ ایک سنگین صورتحال ہے، وہاں پہ نہ عوام کو تحفظ ہے، نہ کاروبار کو تحفظ ہے۔ اور آج یہ صورتحال ہے وہاں پہ کہ 24 گھنٹے میں 14 گھنٹے ہمارا کوئٹہ ارنائی کا روڈ بند ہے۔
FC उसको ट्रैफिक वहाँ नहीं छोड़ती है, अब न मरीज़ को छोड़ते हैं न कोई और ज़रूरी काम। ये 14 घंटे हर दिन ये रोड हमारा बंद है, लोग वहाँ पे मासूर है। तो इस सूरत हाल का अदरा करते हुए सबसे पहले अरनाई में तमाम सियासी पार्टियों का, कबायली हमायदीन का, अवामी नुमाइंदों का एक जलगा हुआ, इजलास हुआ, वहाँ पे एक कमेटी तश्कील दी गई। अरनाई में हमने एहतजाज शुरू किया, जलसा हुए शटरडोन हड़ताल हुआ, पैजाम हड़ताल हुआ। फिर हम आके ज़ियारत से में सियासी पार्टियों के साथ, अवाम के साथ, हमायदीन के साथ मिल के उनके साथ इजलास किया इस मसले के हल के लिए, दहशतगर्दी बदतखोरी के ख़ात्मे के लिए। और फिर यही फैसला हुआ वहाँ पे कि चूँकि ये किस तरह का मसला है जो सिर्फ शायद अरनाई ज़िले की तहरीक से आवाम के ज़रिए हल ना हो सके, इसमें पार्टियों की मरकज़ी सूबाई क़यादत की ज़रूरत है। इस मसले को सूबे की सतह पे उठाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने कल 14 जुलाई को यहाँ कोयटा प्रेस क्लब में आल पार्टीज़ इजलास तलब किया था। अरनाई अवामी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम जो हमने वहाँ पे एक अवामी तहरीक शुरू की है, उसका नाम है अरनाई अवामी इत्तेहाद, जिसमें तमाम सियासी पार्टियाँ शामिल है, कबायली हमायदीन है, अवामी नुमाइंदे हैं, ताजर और ट्रांसपोर्ट तंजीमें भी उसमें है। तो उनकी मेज़बानी पे कल हमने आल पार्टीज़ यहाँ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने अपने पार्टियों के मरकज़ी सूबाई क़यादत के सामने ये तमाम सूरत हाल रखी और उनसे यही अपील की कि इस मसले को सूबे की सतह पे उठा के एक जमहूरी एहतजाज के ज़रिए हम इस मसले का हल निकालें। फिर आज सुबह 11 बजे बादशाह खान मरकज़ कोयटा में पार्टियों का इजलास हुआ। इजलास में फिर हमारे फैसले हुए कि इस तहरीक को सूबे में चलाने के लिए और अरनाई ज़ियारत के अवाम को बशमूल सूबे में जो दहशतगर्दी है, मारवाड़ है, मच्छ है, स्पिन कारेज है और इसी तरह जो शेरानी और जो के आवाम के मसाइल है, वहाँ पे आज भी एहतजाज जारी है, धरना है। ये तमाम सियासी पार्टियों की हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस पे हम एक अपना रोल अदा करें। तो उस सिलसिले में हमने ये फैसला किया कि चूँकि बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 17 जुलाई को बुलाया गया है, तो सियासी पार्टियों की जानिब से अवामी तहरीक अवामी इत्तेहाद अरनाई की जानिब से 17 जुलाई को सूबाई असम्बली के ज़रिए के सामने हमारा एहतजाज होगा, मुज़ाहरा होगा, धरना होगा। उसी रोज़ जो इजलास होगा उसी रोज़ एक रोज़ के लिए हमने ये एहतजाज का फ़ैसला किया है। इसके अलावा हमने फ़ैसला किया है कि 21 जुलाई बरोज़ जुमा हमारा संजावी में एक एहतजाजी जलसा होगा। चूँकि ज़ियारत अरनाई जो अज़ला दोनों मुंसलिक एक दूसरे के साथ और इस सूरत हाल से दोनों ज़्यादा मुतासर है। 21 जुलाई को संजावी में एहतजाजी मुज़ाहरा व जलसा होगा और 23 जुलाई को फिर हमारा ज़ियारत में जो है एहतजाजी मुज़ाहरा और जलसा होगा। और इसके अलावा जो है 18 जुलाई को यहाँ पे जो आल बलूचिस्तान ट्रक एसोसिएशन है, बस फेडरेशन है, मिनी बस है, कोचेस है, अंजुमन ताजरान है, उन्होंने भी एक इजलास पहले 2-3 इजलास मुनक़िद किए थे। कल आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी वो आए थे, उन्होंने शिरकत की थी। उन्होंने भी 18 जुलाई को सुबह भर में पैजाम और शटरडोन हड़ताल की कॉल दी है। हम आल पार्टीज़ जो है वो उसकी मुकम्मल हिमायत भी करते हैं और उसकी कामयाबी के लिए अपना मतलब जमहूरी सियासी रोल भी अदा करेंगे। और हम तमाम आवाम से भी, ट्रांसपोर्टरों से भी, दुकानदारों से भी अपील करते हैं हमारी आल पार्टीज़ जो है कि वो इस जमहूरी एहतजाज को कामयाब बनाए। कि अगरचे उसके मुतालिबात में सबसे पहले मुतालिबा यही अरनाई का ट्रकों को जलाने का मसला है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, उसके अलावा और भी मसाइल है, वो भी इसी सूबे से उनका ताल्लुक़ है। तो 18 जुलाई को ये हमारा प्रोग्राम होगा, एहतजाज होगा। और इसके अलावा असम्बली के फ्लोर पे जो हमारे पार्लिमानी मेंबरान है वो इस मसले को उठाएंगे तहरीक इल्तिवा की शक्ल में, पॉइंट ऑफ आर्डर की शक्ल में। ये भी हमारा फैसला है, ये भी हमारा फैसला है कि सियासी पार्टियाँ उनकी जो मरकज़ी सूबाई क़यादत है वो यहाँ पे जो हमारी हुकूमत है सूबे में उनके सामने ये इस मसला पेश करेंगे। आला हुकाम के सामने वज़ीर आला जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, वज़ीर गवर्नर साहब है, चीफ सेक्रेटरी है जो इंतज़ामी सरबराह है सूबे का, कि एक आला सतही इजलास बुला के उनके सामने तमाम ये मसाइल, ये सूरत हाल हम रख लें और आइंदा के लिए एक ऐसा मेकनिज़म काबिल कबूल हल मुमकिन हो जाए ताकि लोगों को जो है वो हम जो है तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। और इसमें जो हमारे पार्टियों का आज का इजलास था उसमें ये भी हमने फैसला किया गया कि 30 जुलाई तक तो हमारे
शेड्यूल हमने जारी कर दिया। अगर उसके बावजूद भी यही सिलसिला चलता रहा, ये अबनाई जो जिस सूरत से वो आवाम उनका सामना कर रहे हैं, तो उसके बाद हम फिर दोबारा इजलास तलब करके 24 या 25 को इसमें ये भी हमारे ज़ेर गौर है कि हम सुबह भर में जलसे करेंगे, बलोच कौमी तहरीक की सियासी पार्टियों से मुलाकात करेंगे, पूरे सूबे में इस तहरीक को चलाएँगे मिल के मुख्तलिफ़ मसाइल पे जो है, और उसी में फिर मुख्तलिफ़ ऑप्शन है, शटर डाउन हड़ताल भी है, जो जमहूरी इक़दाम है, पैजाम भी है, और ये भी हमने रखा है कि आखिर में हम फिर वज़ीर आला हाउस के सामने अपना धरना भी देंगे, जिस तरह के इससे पहले भी होता रहा है। ये भी हमारे ज़ेर गौर है मुस्तक़बिल में ये सियासी जो जमहूरी हमारे इक़दाम है। मुतालिबात में हमारा यही मुतालिबा है सबसे पहले कि जो बिलखसूस जलारनाई ज़ियारत की सूरत हाल है, हम समझते हैं कि ये तमाम जो वाक़यात वहाँ पे हो रहा है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस है वहाँ पे जो इन्हें डिप्लाई की है या सिक्योरिटी एजेंसीज़ है, इनकी सरपरस्ती या इनकी पुष्टबनाई या इनकी मर्ज़ी के बग़ैर नामुमकिन है। न इदारे इतने कमज़ोर है, न स्टेट इतने कमज़ोर है, न सिक्योरिटी फोर्सेस इतने कमज़ोर है कि उनके होते हुए दिन दहाड़े बतखोरी हो रही है, बैंकों में बता जमा हो रहा है, बैंक के अकाउंट्स दिए गए मैंस ओनर्स को, बाकायदा टेलीफोन नंबर उनके मौजूद है, जिन नंबरों से फ़ोन आता है कि आपने मंथली ये पैसे जमा करने हैं। और इसी तरह जो कांटे पे वज़न के दौरान जो 230 रुपया जमा हो रहा है, हम इसको मुकम्मल गैर आइनी और गैर कानूनी समझते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के आइन में या सूबे के कानून में सिक्योरिटी के मद में किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं ले सकता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। ये हुकूमत और स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को उनके कारोबार को जो है तहफ़्फ़ुज़ दे। 230 रुपया अब जनवरी 2023 से उन्होंने दोबारा जो है मुसल्लत किया है हम पे, ना उनका कोई रिकॉर्ड है ना कुछ है। हम कोल माइंस है, चाहे सब्जियात है, चाहे हमारे ट्रांसपोर्ट है, बाकायदा गवर्नमेंट को टैक्स देते रहे हैं। पर टन कम से कम 1100 रुपये गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स विद होल्डिंग टैक्स, और इसी तरह सालाना इनकम टैक्स जो है, इसी तरह जो DMD को रॉयल्टी मिल रहा है पर टन, ये 1100 से भी ज़ायद जो है 1 टन पे हम दे रहे हैं। तो लिहाजा इसके अलावा ये जो कांटे पे पैसे लिए जा रहे हैं, इसको जो नाम भी दिया जा रहा है, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, लेकिन ये लिए जा रहे हैं, सरेआम ले जा रहे हैं। तो हमारा यही मुतालिबा है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात है, रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िम्मेदारी है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी है कि इस दहशतगर्दी का चाहे कोल माइंस पे हो, चाहे ताजरों पे हो, चाहे ट्रांसपोर्टरों के ख़िलाफ़ हो, चाहे आवाम के ख़िलाफ़ हो, इसका पिलपोर ख़ात्मा हो। बतखोरी जो चल रही है सरेआम, चाहे अकाउंट की शक्ल में हो, चाहे टेलीफोन नंबर की शक्ल में हो, चाहे जो पर्चियाँ बेचते हैं उसकी शक्ल में हो, इसका मुकम्मल ख़ात्मा हो। और ये जो कांटे पे लिए जा रहे गैर कानूनी टैक्स है, उनका जो है मुकम्मल ख़ात्मा हो, क्योंकि ये गैर कानूनी है। बदअमनी की ये सूरत हाल है कि अब ज़िले में जो लोकल की सतह पे जो क्राइम्स बड़े हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि ट्रैक्टर को कोई चोरी कर सकता है। अब ट्रैक्टर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए तो कितना वक्त चाहिए, ना कोई गाड़ी है कि आप उसको स्पीड ले जाए, या मोटरसाइकिल को। ट्रैक्टर की चोरियाँ हुई है, मोटरसाइकिल की, गाड़ियों की जो है सरेआम चोरियाँ हो रही है। जराइम इतने बढ़ गए, वहाँ पे सिविल अथॉरिटी का मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। न सिविल अथॉरिटी है, न वहाँ पे कोई कानून है, मुकम्मल जंगल का कानून है ज़िले में, और बिलखसूस ज़िला ज़ियारत और अबनाई के जो हदूद है इसमें ये सब कुछ होता रहा है। ऐसे बहुत से वाक़यात है कि जिनके रिपोर्टिंग भी आज तक नहीं हुई है, जिनके FIR अभी तक दर्ज नहीं हुए न हुए हैं। तो एक जराइम मरकज़ बना दिया गया है ये ज़िले। हम समझते हैं कि ये भी रियासत के उसके इदारों की मर्ज़ी के बग़ैर ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह का कोई, जब कहाँ एक रियासत हो, एक हुकूमत हो, इसके इदारे हो, उसके लिए अरबों खरबों रुपए के अवामी बजट से उनको पैसे दिए जा रहे हो, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हो कि वो इन जराइम पेशा नासिर का कोच लगाए, उनका ख़ात्मा करे। इन सब के होते हुए ये जो जिस तेज़ी से ये जराइम बढ़े हैं, तो ये हम समझते हैं कि रियासत की पॉलिसी, इदारों की गलत पॉलिसी है, इनको तब्दील करना चाहिए। ये जो इंसर्जेंसी हम पे मुसलत की गई है, बदअमनी मुसलत की गई है, इस पॉलिसी को, इस माइंड सेट को जो है ये चेंज करना चाहिए। इस तरीके से न लोगों को नकल मकानी पे मजबूर किया जा सकता है, न जो हमारे वहाँ पे वसाइल हैं न उस पर कब्ज़ा किया जा सकता है। हम हज़ारों साल से ये लोग वहाँ पे रह रहे, उनका मादर वतन है, उनके वसाइल है, वो उनके
मालिक है, सरकार को टैक्स दे रहा है, गवर्नमेंट ने उनको अलाट करके दिया है, तो रियासत का या इदारों की ये पॉलिसी चेंज हो, ये बतखोरी का इन तमाम चीज़ों का जो है ये मुकम्मल ख़ात्मा हो। अरनाई में, मारवाड़ में, स्पिन कारेज में समेत तमाम सूबे में, अब ये नहीं सिर्फ अरनाई, चूँकि अरनाई एक मरकज़ बना है, आज तक वहाँ पे एक मसला चल रहा है, तो ये तहरीक अरनाई से जो है वो चल पड़ी है। आवाम का तजारत कारोबार को, उसकी सफ़र को जो है महफूज बनाया जाए कि आप 14 घंटे एक मेन शाहरा को बंद रखते हैं, ये तो बिल्कुल हम कहते हैं कि यार जब हुकूमत नहीं होगी भी शायद आवाम ख़ुद भी अपने रोडों को संभाल सके। जब आप हुकूमत न हो या उसके इदारे न हो, ऐसे बहुत से मुल्क में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वो नहीं, आवाम ने ख़ुद अपने रोडों को महफूज बनाया है, अपने कारोबार को महफूज बनाया, अपनी रस्म रिवाज, अपनी रिवायत के मुताबिक। लेकिन ये मेन शाहरा है जिस पे हज़ारों टन कोयला, सब्जियाँ, लोगों का आमद व रफ्त तरसील होती रही, ये जो है ये आज बंद है। मतलब अभी इस वक्त आप अरनाई नहीं जा सकते, अरनाई का कोई बंद है, जितने भी इमरजेंसी है वो कोयटा नहीं आ सकते। तो हमारा मुतालिबा है कि ये जो तरीक़ेकार है कि रोड बंद करो, प्लान करो, ये रोड को खोला जाए, सिक्योरिटी को जो है महफूज बनाया जाए। वहाँ पे ये सूरत हाल है कि 24 जून से मुकम्मल कारोबार अरनाई में बंद है। लोगों ने मैंस बंद किए हैं, आलात की वजह से बंद है, हद में तहफ़्फ़ुज़ की वजह से, बतखोरी की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से वहाँ पे सारे मैंस बंद है, और वहाँ पे लोडिंग बंद है। करोड़ों रुपए का कोयला अभी भी जल रहा है, वहाँ पे आग पकड़ी है। गर्मी का जो सीज़न है, लोडिंग वो ट्रक वाले इसलिए नहीं कर रहे कि उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, उनके करोड़ों रुपए के ट्रक जलाए गए। खुदा न ख़ास्ता इससे पहले भी इस तरह वाक़यात हुए कि ड्राइवरों को भी शहीद किया गया है। तो ये उनको डर की वजह से, खौफ की वजह से, अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से वहाँ तमाम कारोबार बंद है। वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ी है, वहाँ पे भूख व अफलास का बड़ा ख़दशा है, इंसानी अलमिया पैदा होगा वहाँ पे। जब तमाम कारोबार बंद होगा, करोड़ों रुपए का कारोबार दिन को वहाँ पे होता रहा, वो तमाम बंद है। लोडिंग बंद है, माइनिंग बंद है, हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार है, लोग कलमकानी कर रहे हैं मज़दूर। तो ये सूरत हाल है, इसका मुकम्मल जो है वो ख़ात्मा चाहते हैं। मुतालिबात में हमारा ये भी मसला है सर फहरिस्त। और दूसरा ये है कि जो तबाहशुदा हमारी ट्रकें हैं, चाहे चप्पलट में उसको गोलियाँ मारी गई थी, टायर बस्ट किए गए थे, लाखों रुपए का नुकसान था, चाहे यहाँ पे जो मांगी के मकाम पे उनको जलाया गया था 11 ट्रकों को, उनका तमाम हमने डिप्टी कमिश्नर के पास तमाम उसे कवायद जमा कर दिए हैं, ज़ियारत के पास। ये तमाम उसका जो कंपनसेशन है, मुकम्मल कंपनसेशन हम इन ट्रकों का, चाहे जलाए गए ट्रक हो या जो दूसरे ट्रक हो, उनको जो हमारे मुतालिबा है कि वो फिलफोर उनका कंपनसेशन का ऐलान किया जाए। जरदालू के मकाम पे जो 2 ठेकेदार हमारे शहीद हुए थे, संजावी के रहने वाले जो थे, उन समेत जो दूसरे मज़दूर शहीद हुए वहाँ पे, ये गुज़श्ता 5-6 महीनों के दौरान, 1 साल के दौरान हुए हैं, दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, दहशतगर्दी के वाक़े में वो शहीद हुए हैं। गवर्नमेंट की उसके रूल्स के तहत, कानून के तहत उन सब को जो है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उनको कंपनसेशन जो है वो दिया जाए। और इसी तरह हमारा ये मुतालिबा है, चूँकि अरनाई में सिविल मामलात बिल्कुल, आपने अखबार में ये बयान आपने ख़ुद भी पढ़ा होगा डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, कि इस दौरान जब ट्रक जलाए जा रहे थे शाम 5 बजे के टाइम, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब कोयटा से अरनाई जा रहे थे, जब वो वहाँ पे पहुँचे तो इस सूरत को देख के वो वापस हुए वहाँ से। अब ये सिलसिला 5-6-7 घंटे का चलता रहा। ये न्यूज़ हमने नहीं दिया है, ना अवामी इत्तेहाद ने दिया, न किसी पार्टी ने दिया है, गवर्नमेंट ने खुद ये न्यूज़ दिया था, इंतज़ामिया ने खुद दिया था कि DC पे फायरिंग हुई और वो बाल बच गए, और ये सिलसिला 6-7 घंटे तक चलता रहा। यहाँ पे इस दौरान कोई नहीं आया, न ज़ियारत में सिविल अथॉरिटी है, न अरनाई ज़िले में, इस बिलखसूस इस 2 अजला में तो मुकम्मल सिविल मामलात डिप्टी कमिश्नर हमारे सिर्फ अपने दफातर तक जो है वो महदूद है। हमारा ये मुतालिबा है कि ये क्या है जो कानून के तहत सिविल मामलात, सिविल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको संभाले। FC का या सिक्योरिटी एजेंसीज़ का इनके साथ या पुलिस इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो इन मामलात को जो है संभाले। जरगे मुनक़िद करो, मीटिंगें मुनक़िद करो, प्लान करो, ये तमाम मुल्की कानून है, इनके तहत ये गैर कानूनी है, ये नहीं होने चाहिए। सिविल अथॉरिटी बहाल हो, सिविल मामलात सिविल इंतज़ामिया के हवाले किए जाए, लीवीज़ के जो थाने हैं वो बहाल किए जाए। और एक मैं ये बताता चलूँ कि पिछले साल जो एक तहरीक चली थी ज़िला अरनाई की आवाम ने जब चलाई थी, जब खोस में अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन शहीद खालिकदाद बाबर की शहादत के वाक़े के ख़िलाफ़ जो 52 दिन पे मबनी हमारे एक तहरीक चली थी मशहूर, फिर उस दौरान
فیصلہ ہوا جو اس کی شہادت کے قتل کے واقعے میں جو میجر یا کرنل ملوث تھا اس کے خلاف FIR کاٹی گئی. وہ FIR کافی باقاعدہ ریکارڈ پہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی.